Hello everyone, welcome to The Catalyst, and I wish you a very happy new year of 2022. Now, I want to discuss some very important points along with it. So, the beginning is the most important part of anything. Either it is a new task, new project, new session, new day, new month, or it is a new year. This time we all are celebrating New Year 2022, and we know that the year 2021, which was full of challenges for all of us. I am talking regarding pandemic. So it was full of challenges for many of the lives. So I wish you here a happy new year, no matter how difficult the past is. चाहे पुराना समय कितना भी अच्छा हो, वी कैन डेफिनेटली बिगिन अगेन. हम बहुत अच्छे से शुरू कर सकते हैं. इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल, you can start, you can initiate, you can ignite your all energy, you can put your all potential here. So we all are likely to excited to start a fresh journey in 2022. You can take a new resolution, and resolution can be many things. Someone have said, when life is sweet, say thank you and celebrate. When life is bitter, again say thank you and grow. So whenever life is bitter, you must remember that you still give away and you still thank to the life, but regularly keep on working if you are facing any failure. Today people are celebrating New Year throughout the world like festivals. All are, you have seen that everyone was involved, engaged, and enjoyed festival. You must have heard Australia is the country which first started, any year you will see Australia is the country which starts first to celebrate this new year or any new year. Every year people plans parties, picnics, some plan to visit temple, some plan to visit mosque, some plan to visit some peaceful places so that they may have take new resolution. We should plan to wash off all our bad habits along with it. हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़ना है. Procrastination, that is the worst part of our life, so we must leave the procrastination, right? So हमें ये सबसे बड़ा लेसन यहाँ पर सीखना है कि any bad habits we have, we must abandon it to cultivate new and positive habits within us. That is important. So हमें और gradually habit formation, you must have heard that it takes around 21 days. If you are regularly getting up early in the morning like 6 a.m., so you must take this up to 21 days and definitely you will have that habit. Habit can be anything for your health. If you are getting up early and taking glass of water, or you are in these days like in the winter season, you are having lukewarm water up to 1.5 liter or 1 liter, so it will be energetic for you. It will be helpful for detoxifying many things. Yes or no? So you must take water. So this is again a type of habit for health perspective. Someone are very much like someone have taken maybe a resolution of completely abandon plastic use. So these all are can be different person to person, it varies. On New Year, ये जो powerful occasion है, let us connect with our loved one. हमें अपने प्यारे लोगों से भी जुड़ना है. Pray for them, उनके लिए pray करना है, and their happiness and their health, है ना. तो यहाँ पर आपको वेलकम करना, एक नई फ्रेश जर्नी री-इनविगोरेट करना है. our enthusiasm and chasing goal and dreams, हमें इनको पूरा करना है. We should remember life is not about expecting, or we can say life is not about hoping or wishing. It is about doing, being or become.
हमें बनना होगा और उसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना होगा। वी हैव टू पुट सम एफर्ट इन इट। लेट अस ऑल मोटिवेट आवरसेल्व्स। चलिए हम सभी अपने आप को मोटिवेट करते हैं इस डायमेंशन में टू फोकस ऑल द वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज दैट दिस न्यू ईयर विल ब्रिंग। तो ये जो नया साल है हमारे लिए बहुत से नए अवसर लेकर आएगा। वी मस्ट ओपन फॉर दैट, वी मस्ट रेडी फॉर दैट है ना, वी शुड बी एनर्जेटिक फॉर एवरी पॉइंट। सो लेट अस all motivate ourselves to live our best life this year. This year should be a new beginning, confident beginning. It is important to stay our decision. This is very important. We must take new decision, important decision for our life, but we should stay on that. The most important thing in life to success, it is not time within time. Concentration is the most important part. Yes or no? You believe or not? If you will concentrate anything and particularly a thing, definitely you will get successful. So to stay focused, to develop positive attitude and to be passionate with our dreams. हमारे जो सपने हैं वो पूरे होंगे जरूर, बट वी मस्ट फोकस, डिसीजन पर हमें स्टे रखना है, हम उस पर लगे रहें। So all my dear students, God is with us. Take a leap of faith and begin. एक लंबी छलांग लगाइए और शुरुआत कीजिए, एक अच्छी शुरुआत कीजिए दिस वंडरस न्यू ईयर by believing in God. भगवान के अंदर आप यदि विश्वास रखते हैं, this wondrous new year by believing in God and ourselves. First and foremost, believe in God along with ourselves. Thank you once again. Wish you a very happy new year, healthy new year. Stay positive, stay focused and develop, inculcate some new habits, hobbies, है ना, and self motivation. So thank you so much again. Wish you a very happy new year. Stay blessed. तो चलिए अब हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। So first and foremost what we will discuss here, आई थिंक कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है, यस। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे व्हाट ऑल वी डिस्कस टुडे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू कवर दैट। तो यहाँ पर हम ला नीना और अल नीनो का कॉन्सेप्ट को समझेंगे सबसे पहले। देन विल मूव टू चाइनाज इशू ऑफिशियल नेम। अभी 15 जो प्लेसेस के नाम क्यों दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। इंटरनेशनल रिलेशन, जियोपॉलिटिक्स को लेकर, डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में एक बिल्कुल अच्छे से जो हमें पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन, इनके बीच में जो विभेद है वो। चिशुमले डैमचौक, ये आपने नाम सुना होगा, ये अब वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड हो चुका है ना। पहले कभी साउथ अमेरिका में पाया जाता था, अब भारत में है ये, क्योंकि अभी इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सम मोर पॉइंट लाइक व्हाट आर सॉलिड स्टेट बैटरीज। हम लोग बात करेंगे लिथियम आयन बैटरी के बारे में। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे राइट दिस वन, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सून टू हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और साथ ही साथ आरसीईपी भी हमें पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया उसमें है, इंडिया नहीं है उसमें। एंड देन विल डिस्कस 24th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। 24th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या है, हर साल में 2 बार आती है, बैंकों की हालत को बताती है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में बात करेंगे, जो हम ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं, यस और नो। और उसके बाद ओडिशा के रेडियो टैग रेस्क्यूड इंडियन पेंगोलिन याद आ रहा होगा आपको, कोरोना में बहुत फेमस हुए थे। और फाइनली वन इम्पॉर्टेंट एंटीवायरल जो ड्रग है दैट इज मोलनूपिराविर, एक बार चर्चा में। तो ये सभी आज हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ला नीना एंड मानसून के बारे में। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए ला नीना अल नीना क्या है। तो यहाँ पर देखिए एक कॉन्सेप्ट तो क्या है, अल नीना, और एक है ला नीना, राइट। ला नीना का स्पेनिश में मतलब होता है द गर्ल, लिटिल गर्ल, और अल नीना का मतलब होता है द लिटिल बॉय, छोटा बच्चा। और ये जीसस क्राइस्ट से संबंधित है। यहाँ पर देखिए क्या है, जब हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिए, किसी एक कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं, पहले ला नीना को ले लेते हैं।
लानिना में आपको ये बात याद रखनी है कि जो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये वाला पूरा एरिया है, यहां पर लानिना के केस में रेनफॉल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा होता है, मोर रेनफॉल, राइट। अब ऐसा क्यों होता है? लानिना के केस में व्हाट हैपेंस दैट, राइट, यहां पर देखिए आप, लानिना के केस में क्या होता है, यहां पर जब कूल वाटर होता है तो यहां पर वार्म हो जाता है। ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन, राइट। ऑसिलेशन क्यों? ऑसिलेशन का मतलब जैसे पेंडुलम ऐसे मूव करता है, तो कभी यहां पर ठंडा तो यहां पर गर्म, यहां पर गर्म तो यहां पर ठंडा, राइट, है ना। यहां पर कूलर तो यहां पर वार्मर, यहां पर वार्मर तो यहां पर कूलर। तो भी कूल वाटर यदि है, इफ इट इज कूल वाटर तो यहां पर वार्म होगा, और यदि वार्म होगा रेनफॉल ज्यादा होगी। वाई? बिकॉज प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा, रेनफॉल ज्यादा होगा। अल नीना के केस में बिल्कुल रिवर्स, यहाँ पर कूल वाटर की जगह वार्म वाटर हो जाता है और यहाँ पर कूल हो जाता है, और इसीलिए रेनफॉल जो है अल नीना में कंपैरेटिवली कम होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट बेसिकली। अब व्हाई इट वाज इन न्यूज, ये न्यूज में क्यों था? हम बात करेंगे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में, दिस वन। और आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून टकराता है इंडिया के तमिलनाडु में, ये तो केरला वाला रीजन हो गया, इधर आंध्र प्रदेश में। सो जब ये यहां पर स्ट्राइक करता है, व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन दिस लैंड, तो यहां पर रेनफॉल होती है। और कब होती है ये आपको पता होगा, नवंबर के एंड में और दिसंबर के शुरुआत में, और बहुत अच्छी रेनफॉल होती है, आपको पता है, सब कुछ जलमग्न डूब जाते हैं, है ना। और ये कॉन्सेप्ट क्या देखा गया कि ला निना के कारण रेनफॉल का पैटर्न में परिवर्तन आया है, राइट। तो रिसेंटली व्हाट हैपेंस वो देख लेते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है, देखिए, इंपैक्ट ऑफ ला निना ऑन नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्या इंपैक्ट हुआ है? ला निना इज नोन फॉर एनहांस रेनफॉल, मैंने आपको बता दिया, रेनफॉल ज्यादा होता है विद साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जब होता है तब तो यहां पर क्या है, रेनफॉल ज्यादा होता है। अगेन विद एक्सेप्शन, इट इज कोरिलेटेड नेगेटिवली विद द नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो याद रखना, होता क्या है कि यहां पर इंडिया का जो मेन मानसून है वो क्या है, साउथ वेस्ट मानसून, ये तो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है उस केस में इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ओवरऑल आपको समझ में आएगा, क्योंकि भारत में मेनली रेनफॉल किससे होगा, साउथ वेस्ट होगा, इसीलिए ओवरऑल रेनफॉल ज्यादा होता है। अब यहां पर क्या हो जाता है, क्योंकि यहां पर जो एरिया है वो वार्म होता है, इसलिए लो प्रेशर एरिया बन जाता है, और डिप्रेशन और साइक्लोन फ्रॉम रिलेटिवली नॉर्थ देयर नॉर्मल पोजीशन ड्यूरिंग द ला निना ईयर। तो यहां पर क्या होता है, देखिए, लो प्रेशर एरिया बन जाता है, डिप्रेशंस होते हैं, और साइक्लोन्स। तो साइक्लोन्स क्या होते हैं, क्योंकि साइक्लोन्स तो इस प्रकार से चल रहे होंगे, तो यहां पर ये बैलेंस हो जाता है। इंस्टीड ऑफ मूविंग वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, है ना, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट टूवर्ड्स ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, दे टेंड टू रिकर्व मूव अवे। और वो क्या करते हैं, बजाय वहां पर आने के, वो जो, क्योंकि ये ऑलरेडी पानी जो है गर्म है, तो बजाय लैंड पे टकराने के, ठीक है, तो रॉबिंग द साउथ पेनिनसुला इट शेयर रेनफॉल। तो कुल मिला के क्या होता है, इनका कर्व मूव हो जाता है, और अल्टीमेटली याद रखेंगे, ला निना में साउथ वेस्ट मानसून जो मेनली मानसून होता है वो तो इंक्रीज होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट मानसून जो कि विंटर में होता है, राइट, नवंबर दिसंबर में, वो उस पर इरेटिक पैटर्न देखने को मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट। तो ला निना, अल निना, अपने आप में इसको एक टर्म हमेशा यूज में आती है। ला निना का मतलब है लिटिल गर्ल, अल निना का मतलब है लिटिल बॉय, और ये सरफेस टेम्परेचर में अंतर के कारण होता है। इसका जो टर्म है, दैट टर्म इज अल निनो साउदर्न ऑसिलेशन। साउदर्न ऑसिलेशन में मतलब क्या है, पैसिफिक ओशन का जो साउदर्न रीजन है, यहां पर यदि कूल है तो यहां पर वार्म हो जाएगा, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ला निना। यदि यहां पर वार्म है तो यहां पर कूल हो जाएगा, ये कौन सा है, अल निना। ये कूल है तो भारत में रेनफॉल कम होगा, ठीक है। तो यहां पर हम साउथ वेस्टर्न मानसून के लिए रेफरेंस में बात नहीं कर रहे, चर्चा में क्यों आया, नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण, ठीक है। तो ला निना, ये आपको एक और टर्म यहां पर सरफेस टेम्परेचर की जो बात आ रही है, सी सरफेस टेम्परेचर। यदि आपको पता है सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होता जाएगा, ऑब्वियसली जो है रेनफॉल ज्यादा हो, सी सरफेस टेम्परेचर कम होगा, रेनफॉल कम होगा, प्रेसिपिटेशन कम होगा, ठीक है। चलिए
तो इस प्रकार से ला नीना अल नीना में यदि बात करें तो ड्यूरिंग ला नीना सी सरफेस टेम्परेचर आर एलिवेटेड बियॉन्ड 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है, गर्म हो जाता है, इसीलिए क्या होगा, रेनफॉल इस रीजन में ज़्यादा होगा। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वगैरह। अल नीना में राइट ओवर ईस्ट पैसिफिक, अल नीना में जो ईस्ट पैसिफिक है मतलब जो उधर वाला एरिया था, मतलब जो पेरू एरिया है उस एरिया में है ना, वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पूरे पॉइंट हमने एग्जैक्टली पढ़ भी लिए, आप भी एक बार देख लेना। ला नीना में क्या होता है कि ला नीना में ये नॉर्थ ईस्ट मानसून को तो सबड्यू कर देता है बट साउथ वेस्टर्न मानसून को इंप्रूव कर देता है। अल नीना के कारण भारत में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वहां पर जो है वार्म हो जाएगा तो इंडियन साइड में, ऑस्ट्रेलियन साइड में कूल हो जाएगा। ओवरऑल क्या होगा, इंडिया में ड्रॉट आएगा क्योंकि भारत में मानसून विच इज फॉलोड दैट इज साउथ वेस्टर्न मोस्टली। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। तो नॉर्मली क्या होता है, ला नीना सबड्यू द कॉन्करेंट नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये बात आपको याद रखनी है। बट दिस ईयर ला नीना इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग एक्सेसिव नॉर्थ ईस्ट मानसून, लेकिन इस बार क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून अच्छा खासा होता है। ठीक है, क्यों, दिस इज ड्यू टू रेन ड्राइविंग लो प्रेशर एरियाज डिप्रेशन इन द बे ऑफ बंगाल। कई बार क्या होता है कि कुछ स्पेशल कंडीशन, यहाँ पर लो प्रेशर एरियाज डिप्रेशन इन द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी सो फार, तो यहाँ पर इसीलिए रेन ज़्यादा हुई है। ठीक है, इस बार स्पेशल पैटर्न हुआ है कुछ। सो द इंडियन ओशियन डाइपोल इन इंडियन निनो हैड गॉन फॉर स्लाइटली नेगेटिव मोड इनटू न्यूट्रल इवन नॉर्थ ईस्ट मानसून वाज एस्टेब्लिशिंग। तो इस बार थोड़ा सा पैटर्न अलग था एंड इंडियन ओशियन डाइपोल इन्वॉल्व्स अ पीरियोडिक ऑसिलेशन इन SST, मतलब सरफेस सी सरफेस टेम्परेचर में बिटवीन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, इसमें भी परिवर्तन आता रहता है। कहाँ पर, जो इंडियन ओशन है वहाँ पर भी। ठीक है, सो द नेगेटिव IOD कुड हैव wrecked नॉर्थ ईस्ट मानसून irrespective of Pacific mode since warming of the East Indian Ocean could divert rain system away from the way। जब नेगेटिव की बात करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, बे ऑफ बंगाल और वो ईस्ट वाले पार्ट में यदि वार्म ज़्यादा हो गया तो आपको पता है कि कोल्ड से वार्म एरिया हमेशा क्या होता है, जहाँ पर हाई प्रेशर होता है, जो कोल्ड एरिया है वहाँ से हीट वाले एरिया में, तो हीटेड ऑलरेडी, जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि इंडियन ओशन का ये वाला रीजन है, दिस रीजन है ना, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, यदि ये वार्म हो गया और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है तो पैटर्न ऐसा होगा या पैटर्न कुछ रिकर्व होके यहाँ जाएगा और इस कारण से ओवरऑल रेनफॉल कम होगा क्योंकि ये वार्म। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी एंड दैट इज वाई नेगेटिव पॉइंट समझ में आ गया। वैसे पॉजिटिव में क्या होगा, यहाँ पर वार्म की बजाय कूल होगा तो यहाँ बिल्कुल नहीं जाएगा और सीधे स्ट्राइक करेगा। सो इस प्रकार से मॉनिटरिंग सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ निनो रीजन ऑफ इक्वेटोरियल पैसिफिक शोज 3 फिनोमिना, और ये 3 से 5 साल में रीअकर होते रहते हैं, चेंज होता रहता है। पैसिफिक ओशन में जिस प्रकार का पैटर्न है, यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर पैटर्न इंडियन ओशन में भी बनता है, उसका भी लार्जर इम्पैक्ट तो नहीं है, लार्जर इम्पैक्ट तो पैसिफिक ओशन का ही है। तो इस प्रकार से ईच साइकिल लास्ट 9 मंथ टू ए ईयर परहैप्स इवन मोर मैनिफेस्टिंग फ्लड ड्रॉट अक्रॉस द जियोग्राफिक्स। तो मैंने आपको बता दिया अल निना जो है वो लगभग 1 ईयर के लिए नॉर्मली और 3 to 5 ईयर, 3 ईयर्स के लिए, 1 to 3 ईयर्स के लिए ला निना। ठीक है, चलिए, यह आपने चर्चा बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि चाइना ने एक इश्यू उठाया है, ऑफिशियल नेम्स फॉर 15 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। आपको ये बात समझनी होगी कि चाइना हमेशा जो एक लाइन थी, है ना, ठीक है, उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता था, है ना। चाइना ने कभी भी जो मैकमोहन लाइन है उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। यहाँ पर आपको क्लियर कट पॉइंट मिल जाएगा, जो मैकमोहन लाइन है उसे कभी भी एग्री नहीं किया क्योंकि चाइना ये कहता था कि जब मैकमोहन लाइन पर हम लोग वी आर नॉट रेडी, हम लोगों को तो डिस्कस ही नहीं किया कि हमारे ऊपर तो बस आपने थोप दिया इसको, है ना। उस समय 1912 में जब ये मैकमोहन लाइन बनी थी तब किंग डायनेस्टी वहाँ पर हुआ करती थी, राइट। तो शिमला कन्वेंशन में ये सब हुआ था। अब जो है चाइना उस पुराने जो भी एरियाज हैं, है ना, उनको अपना कंट्रोल में करना चाहता है और इसीलिए आपने देखा होगा ताइवान भी है, उसको कब्जा करना चाहता है। फिर तिब्बत को तो इन्होंने कंट्रोल में ले ही लिया।
रशिया से भी कुछ डिस्प्यूट है, सभी से डिस्प्यूट है, जापान से शेनकाकू आइलैंड वगैरह। तो चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स हैज इश्यूड स्टैंडर्डाइज नेम ऑफ 15 प्लेसेस इन द इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू बी यूज्ड हैंसफोर्थ ऑन ऑफिशियल चाइनीज मैप। तो भारत का जो ये अरुणाचल प्रदेश रीजन है उसमें ये रिवर्स, पासेस और आने वाले समय शहरों को भी, इससे पहले भी 7 अलग अलग लोकेशन को, 6-7 लोकेशन को इन्होंने नाम दिए थे। और ये जियो मैपिंग कर रहे हैं क्योंकि कल को क्या है, ये अपने नाम के अनुसार चलेंगे। इवन जो अरुणाचल प्रदेश है इसको अरुणाचल प्रदेश नाम देकर इसको क्या बोलते हैं, जैंगनन रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपना इसको नाम दे रखा है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज डिसमिस चाइनीज इन्वेंशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बिल्कुल इसको डिसमिस कर दिया है। एंड अरुणाचल प्रदेश ऑलवेज बीन एंड विल ऑलवेज बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, सेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो अब क्या है, मैंने आपको बताया था आज नहीं तो कल, वी हैव टू बी रेडी, हमें बिल्कुल तैयार रहना होगा। विशेषकर इकोनॉमिकली हम जितना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, $5 ट्रिलियन, और यदि अटैक, मान लीजिए अटैक होगा, नो डाउट वो करेंगे ही, तो 2028 या 30 तक हमें अपनी इकोनॉमी को $10 ट्रिलियन ले गए तो हमारा डिफेंस बजट अच्छा खासा होगा। वी कैन फेस चाइना इजीली। तो हमें क्या है, सबसे यही इकोनॉमी ही जो है बचा सकती है, क्योंकि उसके कारण ही डिफेंस बजट हमारा, अदरवाइज चाइना का जो इन्वेजन है वो बिल्कुल हम फेस कर सकते हैं। इससे पहले वो ताइवान को भी अटैक करेंगे। याद रखना, ताइवान देखिए कहाँ पर आइलैंड कंट्री है, बट ताइवान भी अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है। तो आपसे पूछा जाए कौन कौन से 2 देश, भले ही ताइवान से हमारे रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन ताइवान की मजबूरी है, क्योंकि चाइना वो वन चाइना, उसके तहत क्या है, वो चाइना को अपना हिस्सा मानता है, चाइना जो है ताइवान को अपना पूरा हिस्सा मानता है, और इसके चलते क्या है, अरुणाचल प्रदेश को वो अपना हिस्सा मानता है और वो अपने एजेंडा में रखता है। बट ऐसा नहीं है कि ताइवान का यदि पूरा कंट्रोल, जो कि नहीं हो सकता पूरे चाइना पर, मेनलैंड चाइना पर कंट्रोल नहीं हो सकता, बट उसको कहना पड़ता है, उसकी मजबूरी है ना, इट कंपेल टू से सो। तो ये जो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश है वो अपनी टेरिटरी बताता है। इसका नाम है जैंगनन, इन चाइनीज लैंग्वेज मेक रिपीटेड रेफरेंस साउथ तिब्बत के रूप में बताते हैं ये लोग। चाइनीज मैप शोज अरुणाचल प्रदेश पार्ट ऑफ चाइना, हमेशा इस तरह से दिखाते हैं। चाइना मेक्स पीरियोडिक एफर्ट, और लगातार क्या है, इससे ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाते रहते हैं, गिविंग चाइनीज नेम टू प्लेस अरुणाचल प्रदेश पार्ट ऑफ दैट एफर्ट। तो हमने तो सीधे से उसको नकारा है, लेकिन उसके लिए क्या है, हमें इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, जैसे हमने डैम चौक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, अरुणाचल प्रदेश में भी हम लोग लगातार जो है बॉर्डर्स पे रोड्स इत्यादि डेवलप कर रहे हैं। अर्लियर यूनिलेटरल रीनेमिंग, इससे पहले भी क्या हुआ था, 2017 में अरुणाचल प्रदेश ने 6 प्लेसेस का नाम दिया था, और ये जस्ट जिस तरह की एक्टिविटीज़ करके एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाते रहते हैं। और वहीं दूसरी ओर हम जो हैं उनके विंटर ओलंपिक्स में पार्ट करने की बात कर रहे हैं, उनके ओप्पो, शियोमी, आप देखिए मोबाइल फोन्स, तो उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देंगे हम व्हेन वी आर रेडी विद व्हाट, विद द चिप्स। तो पीसीआर जो है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो लीगल स्टेटस मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है कभी भी, है ना। जो कन्वेंशन बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और तिब्बत के बीच में हुई थी 1914 में, चाइना वाज रिप्रेजेंटेड एट शिमला कन्वेंशन बाय प्लेनिपोटेंशियरी ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो यहाँ पर क्या है, किंग डायनेस्टी थी उस समय पर, और जो है प्रेजेंट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट केम टू पावर। आपको पता होगा कि जो वर्तमान में जो चाइना है, उनके जो पहले माओ जेडोंग थे, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मैसेक्रे करने वाले माओ जेडोंग है ना। माओ जेडोंग ने लगभग जो है 7 करोड़ पीपल्स को, है ना, किल किया था। तो यहाँ पर माओ जेडोंग जो हैं, उन्होंने इसको अपनी प्रायोरिटी में बनाया आज भी, और इससे मैंने अल्टीमेटली आपको एक बार पहले भी बताया था, दे जस्ट वांट टू विन द पब्लिक्स माइंडसेट। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिस प्रकार से यूएसएसआर का फॉल हुआ है, उसी प्रकार से चाइना में भी सिंगल पार्टी है, उसका भी कभी भी फॉल हो सकता है। जब भी चाइना को ऐसा कुछ प्रकार का प्रेशर लगता है, तो अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ में किसी ना किसी प्रकार से डिस्प्यूट करके उन लोगों के में नेशनलिज्म की भावना को फैला देता है। ऐसा ही कुछ 1962 में करने की कोशिश की गई थी चाइना के द्वारा बाय माओ जेडोंग। यस और नो? तो ये स्ट्रेटेजी होती है, पॉलिसी होती है इंटरनल डिस्प्यूट को रोकने की। तो मैकमोहन लाइन ये क्या है, ये आप पढ़ लीजिए। हेनरी मैकमोहन ब्रिटिश निगोशिएटर थे। शिमला पैक्ट में, शिमला है ना, शिमला में ये मीटिंग हुआ था, राइट, शिमला कन्वेंशन।
एंड चाइना ऑल्सो बेसिस इट्स क्लेम ऑन हिस्टोरिकल टाइज एंड एग्जिस्ट बिटवीन मोनेस्ट्री इन तवांग। देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं कि चाइना में आप बोलेंगे कि बौद्ध रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। चाइना का अपना जो वहाँ का एक पर्टिकुलर रिलीजन है, वैसे बौद्ध वहाँ पर 13 से 14% ही रहते हैं। और आपको पता होगा थर्ड मोस्ट रिलीजियस इंपॉर्टेंट साइट है बुद्धिस्ट के लिए त्वांग। तो इंटेंशन क्या है रीनेमिंग के लिए, तो यहाँ पर चाइनीज स्ट्रेटेजी टू एजर्ट इट्स टेरिटोरियल क्लेम, वो बार बार क्या है इसका नाम देके अपना टेरिटोरियल क्लेम को और ज़्यादा प्रेशर करना चाहता है। मैंने आपको सलामी स्लाइसिंग भी बताया था, बताइए व्हाट इज सलामी स्लाइसिंग। एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी चाइना कंटिन्यूसली इशू स्टेटमेंट टू आउटरीच व्हेनेवर इंडियन डिग्निटरीज विजिट अरुणाचल प्रदेश। जब भी हमारे डिग्निटरीज विजिट करते हैं तो ये कोई ना कोई है ना, और वहाँ पर इन्होंने वीज़ा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के लोग फ्रीली वहाँ पर मूव कर सकते हैं। बीजिंग कीप्स हार्पिंग इट्स कंसिस्टेंट क्लियर पोजिशन दैट इंडियन पोजेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दीज क्लेम हैव बीन फाइनली एस्टेब्लिश्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड एज इलीगल, है ना, पूरी दुनिया के द्वारा। इवन नो डाउट कि अक्साई चिन जो एरिया है उससे तो अमेरिका जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, अभी तक उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, बट अरुणाचल प्रदेश को ये इंटीग्रल पार्ट मानता है यूएसए, अमेरिका ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश नॉट ऑल डन लेइंग एग्रेसिव क्लेम ऑन टेरिटरीज ऑन बेसिस ऑफ एलिज्ड हिस्टोरिकल इनजस्टिस डन टू चाइना इज द पार्ट ऑफ बीजिंग्स फॉरेन पॉलिसी प्लेबुक। उनकी जो ये प्लेबुक है उसमें कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो हुआ है चाइना के साथ, मैंने अभी बहुत ही डिटेल में चीज़ें पढ़ी तो उसमें पता चला कि सबसे ज़्यादा मैसेक्रे जो किसी देश में हुए ना वो चाइना में हुए। तो इसमें आपको मैंने माओ जेडोंग बताया, राइट, उसके बाद में जो ये तो फ्रीडम के बाद में हम चाइना के, उससे पहले जो है ना, उससे पहले जो हिस्टोरिकल पर्सन रहे हैं, है ना, जैसे माओ त्से तुंग तो खैर वहाँ के वो थे, है ना, फिलोसोफर थे माओ त्से तुंग। ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सन, राइट, नेम इज़ है ना चंगेज खां, राइट, चंगेज खां इज़ द पर्सन, है ना। तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा किलिंग की है। एंड द क्लेम ऑन ताइवान इज़ वन सच एग्जाम्पल आर कंसिस्टेंट एफर्ट टू चेंज फैक्ट ऑन ग्राउंड, है ना। तो द क्लेम ऑन ताइवान ये भी एक एग्जाम्पल है जिसमें उसका कंसिस्टेंट एफर्ट है फैक्ट की चेंज करना फैक्ट को, है ना, इन सेवरल डिस्प्यूट आइलैंड ऑफ साउथ चाइना सी। एग्रेशन इज ऑल टाइम बैक्ड बाय ओवर्ट एंड कोवर्ट वे, है ना। इनका जो ग्लोबल माउथ पीस है, राइट, ग्लोबल टाइम्स जो इनका जो एक माउथ पीस है उसके माध्यम से ये अपने एजेंडा को पूरी तरह से जो है ना वो, और उसके बाद भी भारत में आप देखते होंगे जो ऑप एड्स हैं, ऑप एड्स उसका अंबार लगा रहता है, न्यूज़पेपर जो है उसी से कमा रहा है ना। आप फॉरेन जो इंग्लिश न्यूज़पेपर जो भी पढ़ते हैं, है ना, इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, ऑप एड्स जो है चाइना की अच्छी अच्छी बातें बताता रहता है। सो आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करेंगे डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सो एंटर प्लान्स टू बैन क्रिप्टो करेंसीज बट इंट्रोड्यूस एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी, है ना। क्रिप्टो करेंसी को तो बैन करना चाहता है सेंटर, और आरबीआई तो और भी स्ट्रिक्ट है इसमें, और यहाँ पर डिजिटल करेंसी को लाना चाहते हैं। तो क्या अंतर है दोनों में? वेल, ऑल क्रिप्टो करेंसी, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है ना, वो एक प्रकार की डिजिटल करेंसीज है, बट ऑल डिजिटल करेंसीज जो है वो, है ना, नॉट ऑल डिजिटल करेंसीज नीड टू बी ऑफिशियल सोवरेन बैक्ड करेंसी। लेकिन सभी डिजिटल करेंसी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अपने आप में डिजिटल करेंसी है, हमने ऑलरेडी बता दिया, लेकिन क्या क्रिप्टो करेंसी कोई सोवरेन बैक्ड करेंसी है? नहीं, केवल एल सेल्वाडोर ने उसे एक्सेप्ट किया है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, डिजिटल करेंसी जो फिएट करेंसी होती है, कैश, वो डिजिटल फॉर्मेट में चला जाता है, बस जैसे हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये सब डिजिटल करेंसी। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पर है, इट यूजेस टू मेंटेन थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, ये हमने कई बार पढ़ा हुआ है। इश्यूइंग अथॉरिटी कौन होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि फिएट करेंसी लोकल उससे है, बट ये किसी भी सिंगल अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं होती है, राइट, है ना। डॉज करेंसी तो फिर भी चलो ठीक है। सेंट्रलाइजेशन होता है ना, डिजिटल करेंसी में डिसेंट्रलाइज्ड होती है ना, ट्रांसपेरेंट काफ़ी होती है ये भी, है ना। एनक्रिप्शन जो है इसमें कम एनक्रिप्शन है, ये बेस्ट एनक्रिप्शन पे काम करती हैं, इससे कोई हैक वगैरह वो सब नहीं होता है। स्टोरेज क्या है? एनीवन विद रेगुलर ऑनलाइन बैंक अकाउंट क्या उससे जुड़े रहते हैं डिजिटल करेंसी, बैंक अकाउंट से अलग अलग वॉलेट, है ना, इस तरह से भी होता है। ब्लॉकचेन जो है स्टोर्ड इन वॉलेट एंड हाई डिग्री ऑफ साइबर सिक्योरिटी इसमें होती है। जब हम स्टेबिलिटी और फ्लक्चुएशन की बात करें, डिजिटल करेंसी आर लार्जली स्टेबल इन वैल्यू,
फ्लक्चुएट नहीं करती। फ्लक्चुएट कौन करती है? क्रिप्टो करेंसीज करती है, वॉलेटिलिटी है ना। और अभी इसीलिए म्यूचुअल फंड को कनेक्शन ना करने को बोला था सेबी ने, मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया था। ट्रांसपेरेंसी, ये लेस ट्रांसपेरेंट है, पूरी तरह से हाईली ट्रांसपेरेंट है, एनीवन कैन सी व्हाट इज हैपनिंग, हाईली ट्रांसपेरेंट है, ये बात याद रखनी है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, है ना। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि कंट्रोलर कितना लेवाई वगैरह लगाए, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ना मिनिमम एक्सपेंसेस है, नो कमीशन फॉर थर्ड पार्टी, है ना। लीगल फ्रेमवर्क क्या है? ज़्यादातर कंट्रीज ने, ये तो लीगल है ना डिजिटल करेंसी, बट केवल एल सैल्वाडोर एक ऐसा देश आया जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पे डिक्लेयर किया है। इज इट क्लियर? तो ये कुछ डिफरेंस जो है आपको पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो है ना चिशुमले डैमचौक, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, और डैमचौक जो है ना बिल्कुल एंड बॉर्डर पर विलेज है ना, बिल्कुल, और यहाँ से चाइना और नेपाल की शुरुआत होती है। तो ये मोटरेबल रोड है लद्दाख का, है ना। और व्हेन इट क्रॉसेस उमलिंग पास एंड इज नाउ वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। द प्रोजेक्ट इज बिल्ट द रोड थ्रू पास, अ पार्ट ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हमेशा ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और ये किसके तहत कर रहे हैं? प्रोजेक्ट हिमांग के तहत कर रहे हैं। हैव बीन कंप्लीटेड, ये 2017 में कंप्लीट हो गया। इट पासेस थ्रू उमलिंग ला पास के थ्रू गुजरता है, 19,000 फीट ऊंचा है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ द वर्ल्ड। 52 किलोमीटर रोड है ये, ब्लैक टॉप टारमैक रोड फ्रॉम चिशुमले डैम टू डैमचौक, बेटर द प्रीवियस रोड, ताकि हम ना पहले बोलीविया में, साउथ अमेरिका में ये था। वन सेकेंड कुछ दिक्कत हुई है, आई थिंक सब कुछ परफेक्ट है, यस सॉरी, ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, यस एवरीथिंग इज ओके। चलिए, तो यहाँ पर ये एक वॉल्केनो है उतुरुनकू, और ये कहाँ पर है? बोलीविया, जिसकी राजधानी दो हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था, ला पाज और स्यूक्रे, राइट। बोलीविया विच इज द लैंडलॉक कंट्री इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। द रोड वाज बिल्ट अंडर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग कंडीशन एट टेम्परेचर इन द रीजन कैन फॉल, ये -40 डिग्री तक चला जाता है, और ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड है ना। अब भी आप इसका कंपैरिजन करें ना, नेपाल में जो बेस कैंप है, आपको पता होना चाहिए 29,029 फीट ऊंचाई पर है, ये ऊंचाई है ऑफ माउंट एवरेस्ट, राइट, है ना। और माउंट एवरेस्ट की फीट में ऊंचाई है, और जहां से वो चढ़ाई करते हैं बेस कैंप से, जो नॉर्थ बेस कैंप है, और तो यहां पर देखेंगे आप, साउथ बेस कैंप की हाइट है ये, नॉर्थ बेस कैंप की हाइट है ये, और यहां से फिर इस बेस कैंप से चढ़ाई करते हैं अलग अलग पॉइंट्स और माउंट एवरेस्ट को फतेह करते हैं, तो उससे भी ऊंचा है, 19,000 हो गया, राइट। सो चिशुमले डैमचौक रोड इज ऑल्सो हायर देन सियाचिन ग्लेशियर से भी ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है। खारदुंगला इन लेह विच इज वन टाइम अमंग हाइएस्ट रोड इन द वर्ल्ड, खारदुंगला वो सबसे ऊंचा रोड हुआ करता था। मिलिट्रीली सिग्निफिकेंस है इसका, रोड प्रोवाइड्स डायरेक्ट रूट टू चिशुमले विच लाइज मेजर रोड कमिंग फ्रॉम लेह कारू एंड नयूमा, यहाँ से ये रोड इससे कनेक्ट हो जाता है और फिर आगे भी जा सकते हैं। ऑल द स्टेशन आर इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्टेशन, आर क्लोज टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC जो कि चाइना से लगती है उस पर बिल्कुल क्लोज है ये, राइट। तो इस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट जगह है। द करंट स्टैंड ऑफ देखा था हमने लद्दाख में मई 2020 में, वो भी डैमचौक में कम एज द पॉइंट ऑफ कंटेंशन, बीच में ये डैमचौक में आ भी गए थे, एंटर भी हो गए थे। अच्छा बताइए, डैमचौक को किस विलेज के नाम से जाना जाता है? व्हाट टाइप ऑफ विलेज इट इज, है ना, बॉर्डर पर है, क्या नाम होता है इसका बताइए। तो इस प्रकार से फास्टर मूवमेंट हो जाएगा आर्म फोर्सेस का, BRO ने बनाया है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगी, है ना, टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा, मोबिलाइज ट्रूप एंड इक्विपमेंट आसानी से मूव कर सकेंगे, यही हम चाहते भी हैं। और सर्टेन लिमिटेशन क्या है? सिंस द रोड गोज थ्रू सच अ हाई पास, रोड ट्रांसपोर्ट विल अनफीजेबल, विंटर में इतना आसान नहीं होगा, आर्म फोर्सेज रिलाई ऑन एयर सपोर्ट, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। सॉलिड स्टेट बैटरीज हम किसे कहते हैं? जिसमें अंदर सॉलिड होता है। कन्वेंशनल बैटरीज में लिक्विड भी यूज होता था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यदि बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट,
यस, जो लेड बैटरीज हुआ करती थी, तो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स हुआ करते थे, ये सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं यहाँ पर, किसमें, लिथियम में। अब प्रश्न ये है कि वाई वी आर यूजिंग लिथियम देन अदर मटेरियल। तो आपको पता होगा मेटल में यदि बात करें तो लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, लिथियम है ना, थर्ड पे आता है। थर्ड का मतलब पीरियोडिक टेबल में थर्ड नंबर पर आता है, सबसे हल्का है। और इसकी पर केजी जो डेंसिटी है एनर्जी को स्टोर करने की, वो हाईएस्ट होगी। अदरवाइज लिथियम की जगह हम लेड लेंगे तो उसका तो भार बहुत ज़्यादा है, तो वेट बढ़ जाएगा। इसीलिए लाइट वेटेड और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करना है तो हम लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग करते हैं। वाई इट वॉज इन न्यूज़, क्यों हम लोग इनकी बात कर रहे हैं अभी। जैसे पराग अग्रवाल का आपने नाम सुना होगा, हु बिकेम द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर। इन द सेम वे इंडियन ओरिजिन, वन ऑफ द इंडियन ओरिजिन पर्सन जगदीप सिंह, वो हेडलाइन बने, सीईओ बन गए यूएस बैटरी स्टार्टअप के, राइट। और ये स्टार्टअप किसके द्वारा, जो फॉक्सवैगन, इसको फॉक्सवैगन प्रोनाउंसिएट करते हैं, जर्मन की जो कंपनी है ना, कार मैन्युफैक्चरिंग, भारत में इसका प्लांट भी है। क्वांटम स्केप कॉर्प इस बैटरी स्टार्टअप, जो किसके द्वारा बैक्ड है, फॉक्सवैगन के द्वारा। ये यहाँ पर सॉलिड स्टेट बैटरी लिथियम मटेरियल से बन रही है, इलेक्ट्रोलाइट्स स्पेयरिंग 2 इलेक्ट्रोड्स, एक्सेप्शनली ब्राइट प्रोजेक्ट। ये ई व्हीकल्स के लिए एक्सेप्शनली ब्राइट प्रोजेक्ट है। इन्होंने कुछ स्पेशलिटी फीचर्स को ऐड किया है। अभी तक जो है लिथियम आयन बैटरीज है ना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रही है, क्योंकि वो, जैसे मैं अभी स्कूटर बाइक्स की बात करूं तो वो मैक्सिमम 60 किलोमीटर तक जा सकते हैं, मैक्सिमम 80 किलोमीटर तक जा सकते हैं वन चार्ज में। चार्जिंग में समय भी ज़्यादा लग रहा है, सो है ना, ओवरऑल कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। सो व्हाट आर सॉलिड स्टेट बैटरी टेक्नोलॉजी में सॉलिड इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, सॉलिड ही इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रयोग किया जाता है लिक्विड की बजाय, है ना। लेकिन क्या है, सच बैटरीज कैन प्रोवाइड पोटेंशियल सॉल्यूशन फॉर मेनी प्रॉब्लम ऑफ लिक्विड लिथियम आयन बैटरी, जिनमें क्या होता है, फ्लेमेबिलिटी होता है, उसको वो दहन करने की, बर्स्ट होने की क्षमता ज़्यादा है, लिमिटेड वोल्टेज होता है, अनस्टेबल सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, फॉर्मेशन, पुअर साइक्लिंग परफॉर्मेंस होता है। अब व्हाट आर लिथियम आयन बैटरीज, यहाँ पर जो है लिथियम आयन बैटरीज यूज एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वेयर आयन ट्रांसफर टू एंड फ्रो बिटवीन एनोड, है ना। एनोड क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और ये किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, जो किसका बना होता है, लिथियम का। ट्रिगरिंग, चार्जिंग, डिस्चार्ज वगैरह सब कुछ होता है। इसकी लिमिटेशन क्या है, एक तो लो एनर्जी डेंसिटी, बहुत इंप्रूवमेंट करने के बाद भी अभी भी वीक एनर्जी डेंसिटी देखने को मिल रही है, दूसरे एलिमेंट से तो कंपैरेटिवली ज़्यादा ही है फिर भी। स्मॉल एप्लीकेशन, लिथियम आयन बैटरीज आर सीन सफिशिएंटली एफिशिएंट फॉर फोन एंड लैपटॉप, बट ई व्हीकल के लिए हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, तो वो अभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखने को नहीं मिल रहा। लास्ट रेजोल्यूशन तो यही है, तो इसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन साइंटिस्ट लगा रहे हैं, इंजीनियर्स लगा रहे हैं, और यही जो जिस मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ वो इसी पर काम कर रहा है। एक्सट्रीम रिएक्टिविटी, इतना रिएक्टिव होता है, आपको पता ही है लिथियम तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। कोरोजन जो है, कोरोजन देखने को मिलता है, डेंड्राइट्स बन जाते हैं लिथियम के स्ट्रक्चर के, डेंड्राइट्स का मतलब इस प्रकार के लिथियम के डेंड्राइट्स बन जाते हैं, दैट ग्रो आउट, वो बाहर आते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोड एंड कैन पोटेंशियली पियर्स सेपरेटर, शॉर्ट सर्किटिंग भी हो जाएगा क्योंकि वो बाहर की तरफ इस प्रकार से आ जाते हैं। फायर हैजार्ड का खतरा है। अब इस कंपनी ने जो क्वांटम स्केप है उसने क्या ब्रेक थ्रू किया है, उसने क्या ऐसा कर लिया अचीवमेंट, दिस क्लेम टू प्रिवेंट डेंड्राइट फॉर्मेशन, इन्होंने बोला कि हम डेंड्राइट के फॉर्मेशन को रोक देंगे, तो जो फायर वगैरह है वो रुक जाएगा। सॉलिड स्टेट सेपरेटर टेक्नोलॉजी दैट एलिमिनेट्स साइड रिएक्शन बिटवीन लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कार्बन ग्रेफाइट, उनमें रिएक्शन ना हो। रिप्लेसमेंट ऑफ सेपरेटर इनेबल टू यूज लिथियम मेटल एनोड प्लेस ऑफ ट्रेडिशन, लिथियम मेटल एनोड इज मोर एनर्जी डेंस, लिथियम एनोड मेटल जो है एनर्जी डेंसिटी बाकियों से ज़्यादा है देन कन्वेंशनल। तो ये इन्होंने ना बहुत अलग अलग एरियाज पर अपना काम किया है, और ये सभी की एडवांटेजेस जो है इन्होंने लाए हैं, ठीक है। तो लोअर कॉस्ट कुड बी गेम चेंजर, एक कॉस्ट कम हो जाएगी, है ना, 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट वो भी कम करेंगे, तो ये ऑप्टिमाइजेशन लगा रहे हैं, क्योंकि भविष्य का युग जो है हम देखेंगे कि इन्हीं बैटरीज पर होगा। इंडिया का भी बैटरी पुश क्या, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्री काम कर रही है, एक तो है ना सेटअप उन्होंने क्या लगाया, एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री, स्टेट ओन एनटीपीसी लिमिटेड।
वहीं द सेंटर वर्किंग ऑन अ ब्लूप्रिंट प्रोजेक्ट 4000 मेगावाट ऑफ ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज सिस्टम, ये भी हम काम कर रहे हैं और लगातार हम इस पर है ना। और टेस्ला मोटर्स के साथ भी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपको याद आ रहा होगा। भारत की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज ऑफ इंडिया, ACC, है ना। और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री इशूड रिक्वेस्ट टू प्रपोजल सेटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल, और इसके लिए हम जो है PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स का भी काम कर रहे हैं। देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के किस किस के साथ है ये आपको पता होने चाहिए। हम जल्दी शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होंगे। RCEP में तो हमने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि चाइना और जापान और साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, है ना, वो इंडिया के मार्केट को कोलैप्स कर देते क्योंकि अभी हम उसके लिए रेडी नहीं है। बट एक्सपेक्टेड है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी हो जाए। अ मूव एम्ड एट बूस्टिंग इकोनॉमिक टाइज बिटवीन टू कंट्रीज, है ना। और जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो दोनों को मार्केट को यूज़ करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट क्या है? फाइनल एग्रीमेंट इज ऑफिशियली डब्ड एज CECA, एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट एंड ऑफ 2022, 2022 तक ये होने की संभावना है। द पैक्ट कवर्स कौन कौन से एरियाज होंगे? गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, रूल्स ऑफ ओरिजिन, कस्टम फैसिलिटेशन, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल इश्यूज में हम जो है आगे बढ़ेंगे। न्यू स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एग्रीमेंट एक्सपेक्ट टू इंक्रीज बायलेटरल ट्रेड 100 बिलियन विद इन 5 ईयर, है ना। $100 बिलियन आप समझ सकते हैं। चाइना के साथ भी इतना नहीं चल रहा है अभी। व्हाट इज द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? पैक्ट ऑफ, देखिए 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री के बीच में हो सकता है। अभी का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहाँ पर है? RCEP सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, RCEP। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में गुड्स सर्विसेज कैन ब्रॉट एंड सोल्ड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर विद लिटिल और नो गवर्नमेंट ट्रैफिक, है ना। ट्रैफिक का मतलब क्या है? कोई एक्सचेंज रेट वगैरह नहीं लगती, कोटा, सब्सिडीज, सब कुछ रहता है। इससे क्या होता है, जो उनके बेस्ट प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग मार्केट में जा पाते हैं। प्रोटेक्शनिज्म वाला प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री ट्रेड जो है उसमें ये बिल्कुल अपोजिट है, एंटीथेटिक है प्रोटेक्शनिज्म के, इकोनॉमिक आइसोलेशन। इससे ओवरऑल क्या होता है? रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स ऑन क्वालिफाइड, यहाँ पर एलिमिनेशन होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन का इश्यू नहीं रहता है ना। दोनों देश एग्री करते हैं कई चीज़ों पर और उस पर जो है कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं और हारमोनियस तरीके से आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड बढ़ता है क्योंकि इंडिया के अंदर मार्केट में अब जो प्रोडक्शंस हैं उसका एक लेवल को अपलिफ्ट करना हो, उसे बढ़ाना होगा, तभी जो है ना फेयर ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टर भी होगा, मोनोपोलीज खत्म हो जाएंगी और तब जो है भारत में एक स्टैंडर्ड लेवल के लोगों को जो है इंटरनेशनली थॉट प्रोसेस के साथ में मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। सो इंडिया हैज साइंड फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये आपको पता होना चाहिए किसके साथ किया है फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने अब तक का? 1998 में किया था पहला, श्रीलंका के साथ। इसके अलावा भारत के किस किस देश से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये आपको जरूर प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। नेपाल, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, आसियान देश, लेकिन RCEP अलग है, उसमें 5 देश और भी हैं। वो 5 देश कौन से हैं? जापान, साउथ कोरिया, चाइना, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। और छठा देश जो होता वो होता इंडिया, बट इंडिया ने उसे मना कर दिया। इंडिया साइन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है कईयों के साथ, याद रखना, जापान, मलेशिया भी, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, ये लिस्ट याद रखेंगे जरूर। इंडिया ने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किस किस के साथ किया है? बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, लाओस, PDR, ये लाओस देश ही है ना, लाओस है ना, पब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लाओस की राजधानी क्या है? वियंतियन। रिपब्लिक ऑफ कोरिया और श्रीलंका के साथ हमने एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रखा है। इसके अलावा ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस इंडिया का साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ भी है ना। तो इससे क्या होता है? एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, प्रेफरेंस देते हैं कुछ चीज़ों को। कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये तो आपको पता ही होगा, CEPA। इसमें क्या होता है? ऑल्सो लुक्स इनटू रेगुलेटरी एस्पेक्ट को भी हम लोग नज़र रखते हैं, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट में क्या होता है? जनरली कवर निगोशिएशन ऑफ ट्रेड टैरिफ एंड टैरिफ रेट कोटास
रेट्स ओनली। तो यहाँ पर कॉम्प्रहेंसिव में हम लोग टैरिफ पर ही काम करते हैं, ठीक है। और हमने CECA किसके साथ किया है? CECA मतलब कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन पार्टनरशिप मलेशिया के साथ में। फ्रेमवर्क में कुछ अपने एग्रीमेंट्स होते हैं, अर्ली हार्वेस्ट स्कीम्स होती हैं, ये सभी आप एक बार जरूर डिटेल में देख लेना। इकोनॉमी का एक और आर्टिकल, हर एक साल में 2 बार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है। इस बार 24th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये पब्लिश होती है 2 बार एक साल में, और ये असेसमेंट हेल्थ हमारे बैंकों की क्या कंडीशंस है फाइनेंशियल सिस्टम को वो बताती है। क्या इंडियन बैंक्स बोथ पब्लिक प्राइवेट एनफ कैपिटल टू रन देयर ऑपरेशन, क्या वो अपना ऑपरेशन रन कर रहे हैं प्रॉपरली। बेसल थर्ड नॉर्म क्या है उसमें भी बताइए, बेसल थर्ड में भी एक अमाउंट बेसिक होना चाहिए। बेसल थर्ड क्या है, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 बताइए। आर द लेवल ऑफ बैड लोन विद इन द मैनेजेबल लिमिट, बैड लोन का मतलब जो NPA है क्या वो लिमिट में है, NPA। एंड आर क्रेडिट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एबल टू गेट क्रेडिट फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ SRA, SRA का क्या सिग्निफिकेंस है, ये पूरा डेटा इंफॉर्मेशन अलाउ करता है RBI को टू एसेस द स्टेट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी, राइट। तो इससे क्या होता है, माइक्रो फाइनेंशियल रिस्क जो है, हो सकता है भारत में कोई क्राइसिस ना आ जाए इकोनॉमी का, उसको पूरा ये नज़र रखता है हर चीज़ पर, क्रूड ऑयल है ना, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, रेपो रिवर्स रेपो रेट, और फाइनेंशियल हालत को बताने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, ठीक है, ये शायद 2 बार रिपीट हो गया है। इस बार कौन सी रिपोर्ट आई है, 24th रिपोर्ट आई है। लूजिंग मोमेंटम इन द सेकेंड हाफ वेव, आपने देखा कि जो ग्लोबल इकोनॉमी की रिकवरी जो है, जो मोमेंटम था वो सेकेंड हाफ में क्या हुआ, कम हुआ थोड़ा सा रिकवरी, है ना। और रीसरफेसिंग कोविड-19 इन्फेक्शन, सप्लाई डिसरप्शन देखने को मिले, बॉटलनेक्स देखने को मिली, एलिवेटेड इन्फ्लेशनरी लेवल, हमने इन्फ्लेशन तो देखा ही है विशेषकर पेट्रोल डीजल वगैरह में, है ना। शिफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स एंड एक्शन अक्रॉस एडवांस्ड इकोनॉमीज एंड इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि डोमेस्टिक फ्रंट में प्रोग्रेस हुई है वैक्सीनेशन के कारण, उससे रिकवरी कंपैरेटिवली रीगेन करी है हमने, क्योंकि एक ही रीज़न था कि इकोनॉमी तभी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस मार्केट में तभी आएगा जब, है ना, 100% वैक्सीनेशन हो जाए। द कॉर्पोरेट सेक्टर इज गेनिंग स्ट्रेंथ एंड बैंक क्रेडिट ग्रोथ इज इम्प्रूविंग। तो क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव हुई है, बैंकों ने लोन देना ज़्यादा शुरू किया है। सबसे खास बात आपको याद आ रहा होगा, RBI ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, ये सभी को हमेशा कंट्रोल में रखा और पिछले कई बाई मंथली पॉलिसीज में सिमिलर रहा है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो जो होता है वो कमर्शियल बैंक्स का बड़ा है ना, रिस्क वेटेड 16.6, देयर प्रोविजन ऑफ कवरेज रेशियो, तो यहाँ पर देखिए ये इंप्रूव हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव साइन है। हाउएवर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वुड हैव सफिशिएंट कैपिटल, उनके पास सफिशिएंट कैपिटल है स्ट्रेस कंडीशन में भी, तो ये एक अच्छी बात है, ये 24th रिपोर्ट में बताइए। इमर्जिंग साइन ऑफ स्ट्रेस इन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एज ऑल्सो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट कॉल फॉर क्लोज मॉनिटरिंग, है ना, पोर्टफोलियो गोइंग फॉरवर्ड। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, MSME के ऊपर पूरा नज़र बनाए हुए, यहाँ पर कुछ स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था, यहाँ पर कुछ और नए पॉइंट्स आपको मिलेंगे, है ना, कुछ नए पॉइंट्स, KYC वगैरह क्या होता है ये आप आसानी से अपने लेवल पे पढ़ सकते हैं। हमने ऑलरेडी KYC, बस ये जरूर याद रखना कि ओनली पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड हैं सेक्शन 29A के तहत इन RPN 1951, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, वही पार्टीज, मैंने आपको ये बताया था 1% से ज़्यादा जिनका वोटिंग शेयर हो उन्हें ये मिलता है। रेस्ट्रिक्शंस भी बताए गए हैं, ये हमने 7.5% वाला कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था पहले। इश्यू क्या है इस स्कीम के साथ में, ओपेक फंडिंग है, फंडिंग का पता ही नहीं चलता, है ना, आइडेंटिटी ऑफ डोनर कैप्चर्ड, तो वाइल आइडेंटिटी ऑफ डोनर कैप्चर हो जाती है, इट इज़ नॉट रिवील्ड द पार्टी और पब्लिक टू द पब्लिक, लेकिन कौन सी पार्टी कौन सी पब्लिक को, है ना, यहाँ पर क्या भाई आइडेंटिटी ऑफ डोनर तो कैप्चर हो जाती है, और विशेषकर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि SBI से वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। इट इज़ नॉट रिवील्ड टू पार्टी और पब्लिक, है ना, सो ट्रांसपेरेंसी इज नॉट एनहांस्ड फॉर वोटर, वोटर के लिए ट्रांसपेरेंसी नहीं, वोटर को पता नहीं चलता, यहाँ पर पार्टी वगैरह को पता चल पाता है। यहाँ पर नो IT ब्रेक, मतलब डोनेशन जो है इलेक्टोरल बॉन्ड में जो होता है IT ब्रेक का कोई वहाँ पर नहीं प्रावधान प्रोविजन मिलता है ना।
एंड पुशेज डोनर टू चूज बिटवीन रिमेनिंग एनोनिमस, एंड इससे क्या होता है उसका टैक्स भी सेव हो जाता है, ठीक है। एनोनिमस फॉर डोनर, डोनर जो है प्राइवेसी ऑफ डोनर इज कॉम्प्रोमाइज्ड एज बैंक विल नो देयर आइडेंटिटी, बैंक आसानी से बता देगा, इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। और डिफरेंशियल बेनिफिट्स जो है अल्टीमेटली गवर्नमेंट उन्हें देती है। पेंगोलिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है ना। पेंगोलिन लगभग 30,000 से 1 करोड़ तक ये इसका जो ट्रैफिकिंग होता है उसमें बेनिफिट होता है। तो ओडिशा का जो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है फर्स्ट एवर रेडियो टैगिंग करने वाला है ना, स्टैंडर्डाइज रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल है ना इस एनिमल के लिए। अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में इसे रखा गया, एंडेंजर्ड में आता है ये, है ना। रेडियो टैगिंग का एम क्या है, टू डेवलप इफेक्टिव कंजर्वेशन प्लान, इनका कंजर्वेशन, इनका संरक्षण किया जाए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट के तहत, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये सीधी सी बात है, शेड्यूल 1 में पार्ट 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। चाइनीज पेंगोलिन का आपको याद आ रहा होगा जो कोविड-19 में फेमस हुआ था, जिसके खाने के कारण ही स्प्रेड हुआ होगा कोरोना, ऐसा बात की जा रही थी। इंडियन पेंगोलिन जो है वो और कौन कौन से पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। चाइना के अपने पेंगोलिन डिफरेंट है, वहाँ की स्पीशीज़ तो 2 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। एंडेंजर्ड है ये, किसकी लिस्ट की बात करें, IUCN, ये सब लिस्ट पता होनी चाहिए आपको, है ना। कॉमनली नोन एज स्कैली एंट ईटर, ये चींटियां खाते हैं, दांत नहीं होते इन जानवर के, यूनिक है अपने आप में। मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ एवोल्यूशन के बाद इस प्रकार का जो इनका स्कल जो बाहर का आता है ये बना होता है ना। पेंगोलिन का विशेष ये स्केल जो है मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्ट करते हैं बाय बिग कार्निवोर्स, लॉयन वगैरह इसको खा नहीं पाते, है ना, बिल्कुल इसके स्केल के कारण। एंड पेंगोलिन चाइना में, वियतनाम में, यहाँ पर जो है ना डेलिकेसी मतलब किसी विशेष पर्व वगैरह पे इनको खाया जाता है। स्केल्स विच आर मेड ऑफ केराटिन, केराटिन के ही आपको नाखून आपको याद आ रहा होगा उसके बने होते हैं। प्रोटीन होता है जो ह्यूमन के अंदर नेल्स में, नाखूनों में मिलता है ना। ये माना जाता है कि ये जो है इम्प्रूव करता है लैक्टेशन, प्रमोट ब्लड सर्कुलेशन एंड रिमूव ब्लड स्टेसिस, और इसीलिए इनका क्या है सप्लाई वगैरह होता है। अब आप देख लीजिए कि 30,000 से 1 करोड़ तक ये सिंगल एनिमल जो है बेचे जाते हैं। तो वर्ल्ड लेवल पर मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल में से एक है पेंगोलिन, ये बात याद रखें। कंजर्वेशन ऑफ पेंगोलिन रिसीव्ड फर्स्ट शॉट आर्म व्हेन 2017 कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज एनफोर्स्ड एंड इंटरनेशनल ट्रेड बैन। तो यहाँ पर पहली बार जो है ना 2017 में इन पर इंटरनेशनल ट्रेड बैन साइट्स के द्वारा लगाया गया। साइट्स जरूर आपको पता होना चाहिए। एंड फाइनली वी केम टू आवर लास्ट टॉपिक दैट वी नीड टू डिस्कस इज मोलनुपिराविर। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्लियर्ड फर्स्ट एंटीवायरल कोविड पिल मोलनुपिराविर, और ये अभी हमने डिक्लेयर किया है। नए ड्रग्स अब आ रहे हैं साथ में, डेवलप किया गया टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा, क्योंकि कोरोना एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा है ना। इज रीपर्पोज्ड एज एंटीवायरल कैंडिडेट टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट। तो ये ओरल फॉर्मेट में पोटेंट राइबोन्यूक्लियोसाइड एनालॉगस है दैट वर्क्स टू इंट्रोड्यूसिंग एरर इनटू SARS-CoV-2 वायरस जेनेटिक कोड में। ये क्या करता है, एरर क्रिएट कर देता है विच प्रिवेंट वायरस फर्दर रेप्लिकेट। ये उसके जेनेटिक कोड में एरर पैदा कर देता है, राइबोन्यूक्लियोसाइड एनालॉगस, ठीक है। और इससे क्या होगा, हम बच जाते हैं, मतलब उसका जो सेल टू सेल जो रेप्लिकेशन है वो कम हो जाता है। सो दिस प्रिवेंशन रेप्लिकेशन रिड्यूस सीवरिटी ऑफ डिजीज, इससे सीवरिटी कम हो जाती है। इन इंडिया द ड्रग हैज़ बीन क्लियर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अडल्ट पेशेंट विद कोविड-19। अडल्ट पेशेंट्स को इसको यूज़ किया जा रहा है। हाई रिस्क प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। रिस्क फैक्टर इंक्लूड, ये यहाँ पर रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी वाले केस में, 60 साल से ज़्यादा है ना, उनके लिए, हार्ट डिजीज़ वाले लोग हैं उनके लिए ये खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो मोलनुपिराविर, ये बात आपको याद रखनी। तो आई थिंक आपको आज के पूरे डिटेल लेक्चर में एक एक बात, एक एक चीज़ पॉइंट क्लियर हुआ होगा। डिटेल में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। सो कोशिश करूँगा लेक्चर छोटा ही बने, लेकिन क्या होता है कि डिटेल में एक्सप्रेस करने से आपका एडिटोरियल वाले पार्ट भी इसी में क्लियर हो जाते हैं। वंस अगेन I wish you a very happy new year. I am late. I'm making the video late, but don't worry. We'll regularly cover each and every point for the exam perspective. God bless you all. Keep learning, keep watching. Tak at least. Thank you so much.